मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। राजी यूनिट 1 ਤੇ यूनिट 2 अपना कंप्लीट हो गया सी। जो यूनिट 2 ਦੇ जो न्यूमेरिकल सी ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਡੇ ਔਨਵਰਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ यूनिट 3। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ यूनिट 3। यूनिट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, कैपेसिटर, गॉस लॉ, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ करंट, इलैक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ। इन यूनिट 3 ਦਾ यूनिट 3 ਹੈ ਤੇ यूनिट 1 ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। यूनिट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, यूनिट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ यूनिट 1 ਤੇ यूनिट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो यूनिट 3 की गल करांगे अज अपना बेसिक चलना हले ये आप पढ़ांगे मैग्नेटिक फील्ड वाली। मैग्नेटिक फील्ड की हुंदा है उहदे बारे गल करांगे। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नूं E दे नाल डिनोट करदे सी। हुण मैग्नेटिक फील्ड दे विच ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। B ਦੇ ਨਾਲ वेक्टर क्वांटिटी है B। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। B ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करांगे। इस चैप्टर शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की है ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਇਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤਾਂ ओरेस्टेड ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਡਲ, ਜੋ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। आप मान लो डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ AB, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਆ बैटरी लगी हुई है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और रेजिस्टेंस हो गया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ A ਤੋਂ B, ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ A ਤੋਂ B ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਦੀ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਸ ਦੀ ਨੀਡਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੌਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੀਡਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਡਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਸ ਹੈ ਨੀਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
इस तरह डिफ्लैक्ट हो जाएगी। अब तुम देख रहे हो इधर डिफ्लैक्शन इधर होगी, यानी कि कंपस जी नीडल है वो इस तरह डिफ्लैक्ट हो गई है। तो मतलब जो नॉर्थ है वो टुवर्ड वेस्ट जा रहे हैं, नीडल इधर नॉर्थ टुवर्ड वेस्ट एंड साउथ टुवर्ड ईस्ट। तो मतलब जो नॉर्थ टुवर्ड वेस्ट गया ਤੇ ਸਾਊਥ ਟੁਵਰਡਸ ਈਸਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਡਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਸਟਡ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਟੇਬਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਨਾਲ डिटेक्ट किया जा सकता है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रस्टेड एक्सपेरिमेंट। उस तो बाद सेकंड थिंग रस्टेड एक्सपेरिमेंट का सेकंड पॉइंट की सीगा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ A ਤੋਂ B ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਉੱਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ इस तरह करंट की डायरेक्शन होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रही है तो जी मैग्नेटिक कंपस की जी डिफ्लैक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन जी पहला इधर नॉर्थ टू वेस्ट जा रही सी, हुण की हो जाएगी वो नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, यानी कि पहला इधर डिफ्लैक्ट होया सीगा, हुण इधर डिफ्लैक्ट हो जाएगा। तो ये डिफ्लैक्शन कंपस की इधर होगी। तो रस्टेड के सेकंड एक्सपेरिमेंट दे विच सीगा कि जदों आपां करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दांगे तो ऑटोमैटिकली जी कंपस की जी डिफ्लैक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ रस्टेड एक्सपेरिमेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन की सी रस्टेड दी, जिन्नी आपां जी करंट की जी वैल्यू है, जिन्नी करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब जो करंट फ्लो कर रहे हैं वायर के विच करंट फ्लो कर रहे हैं, जिन्नी करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उन्नी जी नीडल की डिफ्लैक्शन है वो ज़्यादा होगी, उन्नी नीडल की डिफ्लैक्शन ज़्यादा होगी। दैट मीन ये रस्टेड के 3 ऑब्जर्वेशन सीगियां रस्टेड एक्सपेरिमेंट दियां। कंक्लूजन यही है भी जो करंट फ्लो कर रहे हैं वायर के विच तो आसे पासे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो दिस वाज द रस्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है राजे नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की आप गल कर रहे हैं। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच की है, राइट हैंड थंब रूल ये जो अप्लाई है, राइट हैंड थंब रूल इस तरीके नाल मान लो आ एक कंडक्टर है जिहदे करंट फ्लो कर रही है, एक कंडक्टर है जिहदे करंट फ्लो कर रहे हैं तो आप इस तरह होल्ड किया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल मतलब थंब अपवर्ड जा रहे हैं, करंट अपवर्ड जा रहे हैं राइट हैंड, तो जिहड़े पासे अपनी फिंगर इन सर्कल है, जिहड़ियां पासे अपनी फिंगर टिप्स ऑफ फिंगर इन सर्कल है उस पासे जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस पासे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इहदे विच तुसीं देख रहे हो अगर करंट अपवर्ड जा रहे हैं तो इस तरीके नाल फिंगर दे टिप्स इस तरीके नाल मतलब एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। जे इस तरह करंट नीचे जा रही है, थंब दस रहे हैं कंडक्टर नूं, तो जिहड़े टिप्स ऑफ फिंगर है क्लॉकवाइज। तो दैट मीन छोटी क्लासां दे विच एक्सपेरिमेंट किया होया हुंदा है, एक कार्डबोर्ड लैके उहदे विचों वायर क्रॉस कर दिए तो उत्थे आयरन स्प्रैडिंग रख दिए, मतलब जो लोहे का चूरा रख दिए
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ, ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। Current upward, the direction of the magnetic field will be anti-clockwise. When current downward, right hand, not left hand, right hand. When current downward, the direction will be clockwise. Okay, downward है, and direction होगी clockwise, clockwise, and this is anti-clockwise. This is the nature of magnetic field. Current flow कर रहे हैं, आस पास magnetic field बनेगा, upward anti-clockwise, downward clockwise. So this is the nature of magnetic field. Magnetic force, magnetic field, magnetic force मैं पहले ही तो दस्या राजे magnetic field ਨੂੰ B vector यानी कि B ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ क्यू, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ Fm ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰਜ V क्रॉस B। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यू V की है वेलोसिटी, किदी वेलोसिटी चार्ज दी, चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली करंट बनेगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा, इनटू B, B की है मैग्नेटिक फील्ड, B की है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला की बन गया V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, ये बन गया Fm is equal to QVB sin थीटा। तो हमेशा याद रखना है, अगर चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ रख रहे हैं तो जो फोर्स का फार्मूला है, जो फील्ड बनेगा उसका फार्मूला की होएगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। तो इथों जे थीटा 0 है, दो तीन स्पेशल केस भी है, थीटा 0 मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਲਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੰਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ 0, ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਥੀਟਾ 0। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ QVB sin 0, sin 0 0, तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगी 0, कोई मैग्नेटिक फोर्स, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना। तो Fm 0, ये थीटा 180 एंटी पैरेलल, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल, तो sin 180 की वैल्यू 0, sin 180 भी 0, तो ये बन गया अरे sin 180 0, नो फोर्स, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। रह गया थीटा 90, थीटा 90 sin 91, sin 91 मैग्नेटिक फील्ड की बन गया QVB। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो कहने का मतलब जो चार्ज फ्लो करेगा करंट तो जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के उत्ते उत्थे आपां नूं मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलना है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम या फील्ड मैक्सिमम एक ही गल है। दैट मीन
परपेंडिकुलर ते जिहड़ा हैगा मैक्सिमम आपां नूं मैग्नेटिक फील्ड मिलदा। तो फार्मूला याद रखना है राजे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। यदि यूनिट की गल करांगे, यूनिट की गल करांगे राजे, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स, क्यू वी बी तो बी की हो गया क्यू इंटू वी, एफ इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड एफ बाय क्यू इंटू बी। फोर्स दी यूनिट न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। चार्ज दी कूलम, चार्ज दी कूलम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अपन को पता है करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हो गया कूलम ओवर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड की बन गया एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो न्यूटन कूलम सेकेंड एम्पियर ए मीटर। तो ये यूनिट बन गई। अब बी की यूनिट की हो जाती है, इनकी क्या होती है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की होती है एसआई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो 1 टेस्ला की हो गया 1 टेस्ला 1 न्यूटन, ये होते जाके माइनस पर एम्पियर पर मीटर। दिस इज द यूनिट एसआई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनू बी नाल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एसआई यूनिट की है टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। एंड सीजीएस यूनिट इज गॉस, सीजीएस यूनिट इज गॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बीच की रिलेशन है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अजे ये बेसिक है मैग्नेटिक फील्ड का। पहले 2-3 पेजेस है थोड़ी बुक के विचे तुसी पढ़ सकते हो। कल जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फोर्स पता करांगे ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।